ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں محمد اقبال صاحب کی جانب, ان سے جانتے ہیں کہ کیبنٹ میں آئے روز تبدیلیاں ہوتی ہیں. فائنانس منسٹر 2 بار چینج ہو چکا ہے, تیسرا نیا لگ چکا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں ایک ہی اہل شخص کو لگا دیا جائے جو اپنے کام ٹھیک سے کر پائے؟ دیکھیں, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے. ابھی شمشا صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان سے کام کچھ نہیں ہو سکے. یہی ہم کہہ رہے تھے. جبکہ وہ پہلے ہم اگر مہنگائی کہیں گے کا تو ذمہ دار. شکایت ہوگی. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ان سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی, ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے اور ملک کی اکانومی اپ نہیں ہو رہی. اس کے لیے کوئی لائق قابل بندے جو اس کو ملک کی اکانومی کو بوسٹ اپ کر سکیں وہ لے کے آئیں. یہی ہم کہہ رہے تھے. تو چوز دی مین, رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. وہ اب کرتے نہیں ہیں. جب وہ تجربہ کا بنایا ہوا ہے ملک کو, اس پہ فیلئر ہو رہا ہے اور ان سے کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکا. پہلے بھی لوگ الیکٹڈ لوگ بھی شور میں چاہتے رہے کسی الیکٹڈ بندے کو لگائیں جس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا کچھ پتہ ہو. جو باہر سے بندے آتے ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے, اور ہم جو کہہ رہے تھے وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ ان سے اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی. تو اگر انہوں نے اب حماد رضا کو لے کے آئے ہیں تو حماد رضا کو تو بڑا اچھا ہے, وہ کر کے دکھائیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ باقی کچھ اکانومی کو انہوں نے بوسٹ کیا ہے اور حالات بہتر کیے ہیں, مہنگائی کم کی ہے. کوئی ڈیلیور تو کریں. ہم تو کہتے ہیں ڈیلیور کریں, ڈیلیور کر کے لوگوں کو دکھائیں. اور آج کل جو ہے نا دور, وہ ڈیلیورنس کا دور ہے. اس طرح نہیں ہوتا دعووں سے کہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو جو مرضی آپ کہہ دیں. لیکن عملی طور پہ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ عوام کے لیے بہتری کیا ہوئی ہے, کوئی مہنگائی کم ہوئی ہے, کوئی کرپشن کم ہوئی ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا ہے, کوئی حکومت کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اگر وہ صحیح ہوں گے تو کوئی ان سے کوئی ذاتی مخالفت نہیں کسی کی بھی. ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ ملک صحیح طریقے سے چلے اور صحیح لائن کے اوپر چلے. یہ تانے شانوں سے آگے نکل کے آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے. پہلے جی پچھلی حکومتیں کھا گئیں, پچھلی حکومتیں یہ کر گئیں, وہ کر گئیں. اب وہ نہیں دور رہا, وہ 6 مہینے سال تک چلتا ہے. اب تو ان کو 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہونے والے ہیں. تو اب کوئی ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. ڈیلیور کر کے بتائیں کون سی مہنگائی کم کی ہے, رشوت کم کی ہے, لا اینڈ آرڈر بہتر کیا ہے, ملک کے حالات بہتر کیے ہیں, فارن پالیسی بہتر کی ہے. کچھ کر کے تو دکھائیں نا, کوئی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائیں. آپ لاہور کو دیکھیں, پی ایم ایل نے کیسے سجایا. سٹی آف گارڈنز مشہور ہے آج کل لاہور. انڈر پاس, اپر پاس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سڑکیں بنی ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو سڑکیں بنائی ہیں دیہاتی علاقے میں, کبھی آپ دیکھیں تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایسی سڑکیں بنی ہوئی ہیں, آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کیسی سڑکیں بنی ہیں. لاہور میں لگا دیا. نہیں لاہور نہیں, باہر بھی جا کے دیکھیں. گجرانوالہ تو لاہور نہیں ہے نا. گجرانوالہ میں دیکھیں ایک پل بنا ہے جو شہر کو 1 گھنٹہ 1.5 گزرتا تھا نا ٹریفک, وہ اب 5 منٹ میں سارا شہر گجرانوالہ کراس ہو جاتا ہے. پھر ایک لوہیاں والا پل تھا, وہاں پہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹریفک رکتی تھی. گجرانوالہ کی میں بات کر رہا ہوں, جہاں سے میرا تعلق ہے, جہاں میں رہتا ہوں. تو وہ اب 5 منٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پول بنا ہے, بغیر اشاروں کے. سیالکوٹ والے سیالکوٹ جا رہے ہیں, پنڈی والے پنڈی جا رہے ہیں, لاہور والے لاہور آ رہے ہیں. تو کچھ کر کے دکھائیں, لیکن تحریک کچھ انصاف ڈیلیور کہتی کریں. ہے کہ آپ لوگوں نے جو سارا پیسہ تھا وہ انہی چیزوں پہ تو لگایا ہے, نہ ہیلتھ پہ لگایا ہے, نہ تعلیم پہ لگایا ہے. نہیں کیوں نہیں ہیلتھ پہ لگایا؟ ہیلتھ پہ بھی لگایا ہے, تعلیم پہ بھی لگایا ہے, وہ نظر نہیں آتا ان کو. شمسا صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ اقبال صاحب تو کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے تو بہت خوبصورت بنا دیا پاکستان کو, اور آپ لوگوں نے تو کہیں پہ بھی پیسہ نہیں لگایا. میں تو ہمیشہ ایک سمپل سا کوشچن پوچھتی ہوں کہ یہ جو پنجاب میں 35 سال ان کا رول اور ہماری پی 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 کا میرے خیال میں 35 سال سندھ میں رول, تو یہ اگر یہ دونوں جو پروونسز میں اتنے اعلیٰ یہ ایڈمنسٹریٹر اور اتنے اچھے انہوں نے کام کیے ہوئے ہوتے اور ہم اس وقت بہت ڈیولپڈ ہو گیا ہوتا پنجاب یا سندھ, تو پاکستان تو میں کہتی ہوں ڈیولپڈ ملک کی صف میں کھڑا ہوا ہوتا. پاکستان نیچے گرا کیوں؟ نیچے کیوں گیا؟ تعلیم میں ہم سب سے کم, ہمارا تعلیم میں ہمارا سب سے برا حال ہے. حالانکہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالجز ایک زمانے میں بہترین انسٹیٹیوشن ہوا کرتے تھے, لوگ باہر سے آتے تھے یہاں پڑھنے پاکستان میں. پھر یہ جو تھا آپ کا آئی بی اے جو ہے وہاں کا انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے کراچی کا, پہلا امریکہ کا وارٹن کا پہلا انہوں نے امریکہ نے زندگی میں پہلی دفعہ جو بائر انسٹیٹیوٹ بنایا وہ پاکستان میں بنا تھا. یہ وہ وقت تھا. ہیلتھ کا تھا ہمارا جو میو ہاسپٹل ہے, جو ہاسپٹل کی سروسز تھی, ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ کوئی باہر جا کے علاج کراتا ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم میں ایک اپر مڈل کلاس کی یہاں پہ فیملی میں بلانگ کرتی ہوں اور ہم ساری عمر لاہور میں رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ چھینک بھی مارتے ہیں تو ان کو باہر سے ابھی بھی میں خبر تو سن رہی تھی, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے, مریم نواز کو بھی, لیکن باہر سے ڈاکٹر جب تک نہ آئے تو ان کے علاج نہیں ہوتے. تو کیسے انہوں نے یعنی کہ یوں نوز ڈائیو کرایا ہے پنجاب کو بھی اور سندھ کو بھی, اور اس کی وجہ سے پاکستان گرا ہے.
ये दोनों ये जो पार्टीज की हुकूमतें थी, अगर पाकिस्तान इतना मेन जो आपका होता है, आपका हेल्थ होता है, आपकी एजुकेशन होती है, आपके इदारे जो है, इदारों को इन्होंने सबको खत्म कर दिया, हर जगह अपना बंदा लगा के, क्योंकि जब आप करप्शन करेंगे और आपकी करप्शन के कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा तो वही बंदा क्वेश्चन नहीं करेगा जो आपका अपना बंदा होगा। तो इन्होंने तो सब चीजों को मुझे बताया कि क्यों नहीं पाकिस्तान से, अगर ये इतना आना चल रहे थे तो पाकिस्तान को तो डेवलप मुल्क के साथ में खड़ा हो जाना चाहिए थे। 2 पुल बना के, 2 सड़कें बना के पाकिस्तान को डेवलप कर रहे हैं, और उसमें भी क्यों बनाया कि उसकी करप्शन से जाके सारे एवन फील्ड और जहाँ पे बाहर जाके जो इन्होंने जितनी भी जायदादें, जितने भी, चाहे वो डार साहब हो या ये शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो, ये तो ये लिखे किताबें, इन पे तो किताबें लिखी हुई है ना, अब मुझे तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये किस तरह की बात करते हैं, क्यों नहीं, अगर इतना ये डेवलप था तो पाकिस्तान क्यों गुर्बत में, क्यों ये इतनी हेल्थ में, हम बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल है ही कोई, मैं आपको थोड़ी सी, पता नहीं, मैं आपका टाइम ले रही हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर थी यहाँ पे, ये शेखुपुरा में उसको भेजा गया, मैं वहाँ गई, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो उनका हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पानी का एक बड़ा तालाब था, उसमें से आप कहोगे मैं झूठ बोल रही हूँ, गो निकल रही थी, गो नहीं होती जो बड़ी सी, ये हॉस्पिटल के अंदर की बात बता रही हूँ। और अंदर मैं गई तो अंदर जहाँ पे ये डॉक्टर रहती थी तो वहाँ चूहा फिर रहे थे कमरों में, वो कहती थी रात को हम घर के मत चारपाइयों से नीचे थी, कहते कि हमें काट ना ले चूहे, और कहती थी कि रात को हम जब जाते हैं, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो वो कहती है कि मैं जब जाती हूँ ये इसके लिए सिजेरियन ऑपरेशन के लिए, तो जितने भी जनरेटर्स हैं उनमें कोई पेट्रोल ही नहीं होता, तो हम ये जला के, ये मोबाइल फोन ये जला के तो हम औरतों को ऑपरेशन करते हैं। ये मैं आपको शेखुपुरा की बात बता रही हूँ। लेकिन शमसा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी तो इसके लिए कुछ नहीं किया ना। सिस्टम सब दुनिया समझती है कि हमारे जो इवन सर्वेंट्स है वो भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए, वो कहते हैं जी प्राइवेट में जाए। ये हाल इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स का किया। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई बेहतरी की? रिहायशी हूँ और मुझे मालूम है कि किस तरह से यहाँ पूरे, यानी कि पूरा डायनामिक से चेंज था। बस सिर्फ ये है कि आप सारे बड़ी से बड़ी रख ले, बिल्डिंग ऊंची ऊंची जो है वो बना ले, सड़कें बना ले, आम आदमी के लिए तो कुछ भी इन्होंने नहीं किया, और अपने मुल्क को नीचे, यहीं पे मेरा एक सवाल है। नहीं, मैं जरा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं बात करना चाहता हूं। साहब आपका पॉइंट आ गया। सड़कें बनाने में ही इनको पैसे और सारी जो थे चलिए शमसा साहब आपका पॉइंट आ गया। सिर्फ नहीं बनाई, सड़कें नहीं बनाई, आपको नजर नहीं आती चीजें। आप मेरे शहर के अंदर आए, गुजरांवाला के अंदर मेडिकल कॉलेज वहाँ पे बना, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज बनाया और 500 बेड का वहाँ पे अस्पताल बन रहा है। आप आते हैं, डेवलप मुल्कों में होते हैं। एक बात आपको पॉइंट ले लें। मिसाल दी, मैं आपको गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ कि आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का अस्पताल वहाँ पे बना है, और 500 बेड का अस्पताल वहाँ पे बन रहा है, और मेडिकल कॉलेज वहाँ पे बनाया है गुजरांवाला के अंदर, जो सदियों से इंतजार हो रहा था कि मेडिकल कॉलेज ही बन रहा है गुजरांवाला में। तो मैं हैरान हूँ कि ये कहती हैं कि वो हेल्थ में काम नहीं, हेल्थ कार्ड किसने शुरू किया था जिसकी आप नकल मार रहे हैं, और ये आपने सारी बातें की हैं, मैं हैरान होता हूँ। फिर आपने कोई स्कूलों में बेहतरी लाए हों, आपने अस्पताल में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो लीडर थे, मियाँ कायदे मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ वो लीडर थे जो अस्पतालों में जाके लैट्रीन तक चेक करते थे। ये कहती है उन अस्पतालों में गंद पड़ा हुआ था। मैं हैरान होता हूँ कि इस तरह का लीडर भाई किसी गरीब आदमी के साथ जाती तो वहाँ हेलीकॉप्टर उतारते थे और इंसाफ दिलवाते थे। ऐसे तो नहीं होता ना, इनको नजर ही नहीं आता कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो जो इन्होंने 3 साल में किया वो जरा बता दे, तफसील बता दे कि हमने ये किया है। सही, हमने हर एक जो इदारा है, चाहे वो कौमी इदारा है, चाहे वो हॉस्पिटल हेल्थ सर्विस है या एजुकेशन है, हमने हर एक का एक डायरेक्शन फॉर्म करने की कोशिश किया। हमने बोर्ड्स बनाया जो कि रिस्पॉन्सिबल हो अपने हॉस्पिटल्स के। मैं आपको बताया ना, अगर आप इतने अच्छे सब कुछ हो गया हेल्थ के बारे में जरा बात करेंगे शमसा साहिबा। इलाज कराते हैं, छींक भी मारते हैं, बाहर जाते हैं, ये हमारे मुल्क में हमारा इलाज नहीं। वही मुल्क जहाँ पे बेहतरीन हमारे हॉस्पिटल, जब हम छोटे हुआ करते थे जो हॉस्पिटल्स थे तो वहाँ बेहतरीन हर किस्म के डॉक्टर, अभी भी हमारे डॉक्टर बेहतरीन है, लेकिन उन पे कोई खर्च ही नहीं किया, ना हेल्थ पे ना एजुकेशन पे। तो उसको आप ऊपर लेके जाने, मैडम आप बता दें जो आपने खर्च किया, आप बता दें। टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आप बता दें आपने क्या किया 3 साल में। सब डायरेक्शन सही हो रही है। एजुकेशन सिस्टम हम सारा यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से, फिर हेल्थ कार्ड, जो आप हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं इकबाल साहब, ये तो हुआ ही शुरू, आपको पता है केपी से ये नाम हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ की बात हो रही है तो क्यों ना वैक्सीन पे भी बात कर लें। पूरे पंजाब में ये हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह सबको मिलेंगे इंशाल्लाह। वो तो आप नकल मार रहे हैं। शमसा इकबाल साहिबा, शमसा साहिबा, हम भी यही, हमने तो कहीं नहीं जाना ना, आपने तो नहीं कहीं जाना। नहीं, रहना तो इधर ही है, मैंने भी रहना, आपने भी रहना, जाना किधर है। सही।
शमसा साहिबा, जब हेल्थ की बात हो रही है तो क्यों ना कोरोना वैक्सीन पे बात कर ली जाए कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की शरह बाकी ममालिक से सबसे कम है, 0 समथिंग है, जबकि अगर हम पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों में देखें, चाहे वो गरीब तरीन मुल्क बांग्लादेश ही क्यों ना हो, वहाँ पे 3% शरह है कोरोना वैक्सीन की। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखिए मेरी बात सुने, ये इस पे बिल्कुल उन्होंने कल बताया, जो अपने असद उमर साहब ने, जो एनसीओसी के हेड भी हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ था, जो भारत जैसा मुल्क जो हमारा हमसाया मुल्क है, वो कोरोना वैक्सीन खुद से बना रहा है, हम लोग बना भी नहीं रहे। उस लाइन पे भी हमें चलना चाहिए और चलेंगे भी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वहाँ से कब चलेंगे? बड़ी टेक्निकल वजह से वो नहीं आया, लेकिन अब दोबारा से वैक्सीन आ रही है और वो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सबको ये वैक्सीन फ्री लगेगी, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी से पहले लगाना चाहते हैं, जब आधे लोग फौत हो जाएंगे, उसके लिए भी इंतजाम करेंगे। और आप देखें कि ये जो कोरोना इस वजह से हुआ कि वो जो हमने इंडिया से आ रहा था हमारा एक खेत, तो उसमें कोई ऐसी टेक्निकल वजह होगी कि और भी मुल्कों को इंडिया नहीं भेज सका, तो उसकी वजह से। लेकिन अब इस वक्त हमारी अभी कल मेरे ख्याल में आया जहाज वहाँ चाइना से पूरा लेके वैक्सीन काफी ज्यादा, और अभी दोबारा आ रहा है, तो इंशाल्लाह देखेंगे आपकी ये भी। चलिए शमसा इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया, चलते हैं मोहम्मद इकबाल साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि अगर मैडम को कहें कोई शहबाज शरीफ साहब से कोई सीखे, कैसे डेंगू को उन्होंने कंट्रोल किया था, कैसे डेंगू कंट्रोल हुई थी पंजाब के अंदर, इस तरह अगर वो होते तो आपको बता दें कि ये किस तरह कंट्रोल होता है। हम कोई मुखालफत पर आए, मुखालफत की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि बेहतरी लेके आए कुछ, ये कहते हैं कि करेंगे, 3 साल में नहीं हुआ तो बाकी 2 सालों में क्या होगा। आपने अपना पॉइंट दे दिया शमसा इकबाल साहिबा, आप चलते हैं शमसा साहिबा, आपने अपना पॉइंट दे दिया, आप चलते हैं इकबाल साहब की जानिब और उनसे जानते हैं। सर, अगर देखा जाए कि अगर कोविड-19 जब नया आया था तब ये हुकूमत फेल हुई, क्योंकि आइडिया नहीं था ना कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है मुल्क में, अगर आने के लिए तभी रोक दिया जाता। आइडिया क्या इनको होना है, कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी, आइडिया क्या, इसमें क्या मुश्किल बात थी कि जो लोग बाहर से आते थे और वही गलती इन्होंने इस साल भी कर दी। देखें फातिमा बीबी, ये है बाहर से बीमारी आई है। एक मिनट शमसा साहिबा, शमसा साहब जरा सुने, ये बीमारी बाहर से आई है, और जब लोग बाहर से आते थे उनको उसी वक्त कंट्रोल किया जाता, जो कि बलूचिस्तान के थ्रू अंदर आ गए हैं सारे, कोई कंट्रोल नहीं किया गया, उनको क्वारंटाइन किया जाता, और गलती हुई, उससे फिर ये सारी चीजें फैली हैं और वो अभी तक चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं। अब बरतानिया से बीमारी आई है, इस तरह ये जो है ना चीज़ें वायरस बाहर से जो आती है उस पर अगर कंट्रोल किया जाता पहले दिन से, तो ये हालात हमारे ना होते। यही हम कहते हैं कि इनको ना कोई चीज़ें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नेंस कोई नहीं है, इनकी गवर्नेंस बेहतर करे, कंट्रोल करें, आवाम के लिए बेहतरी लेके आए, करप्शन अगर टाइमली यूके से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया जाता या एटलीस्ट रोका नहीं जाता, जो लोग वहां से आ रहे थे उनको एसओपीज पर अमल दरामद कराया जाता, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता, कोविड टेस्ट किया जाता, जब तक उसकी रिपोर्ट ना आती तब तक उन्हें पाकिस्तान में ना आने दिया जाता। इसमें कौन सी गलती हमने 2020 में की और अब 2021 में भी की, और उस गलती का नतीजा देख लें कि पाकिस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं 100% तक बढ़ते जा रहे हैं, 100 डेली के मरीज मर रहे हैं डेली की, और अब बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये आप जो बात बता रही हैं, बात ये है कि हर दुनिया के मुल्क में आप कोई जितने भी मुल्क है, चाहे यूरोपियन है चाहे अमेरिकन है, एक दिन वो कहते हैं जी हम बाहर से आने वाले लोगों को बंद कर रहे हैं, एक दिन वो कहते हैं अच्छा जी अब हम दोबारा अलाउ कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, ये एक नई ये जो वबा ये है कोरोना की, कोई भी मुल्क से आप मुझे एक मुल्क का दुनिया में नाम ले दें जो डेवलप्ड मुल्क में जो इनसे बड़ा अच्छी तरह से डील कर सका है, तो ये इसको हमने फिर भी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर तो आई यूके से रही है ना, लफ्ज पाकिस्तान से सीखा, और जिस तरह हमने अपने गरीब तबके को उस वक्त ये जो हमारा प्रोग्राम है उसके थ्रू हमने जिस तरह से उन तक पहुंचे और उनकी मदद करने की कोशिश की, और कारोबार पूरी तरह से बंद करके जैसे कि इंडिया ने किया था, इतना वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग जो थे वो बिल्कुल भूख और अफलास के नजर हो गए थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने इसको अवॉइड किया। अब लेकिन शमसा साहिबा, हम अब उन ममालिक से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो लोग जो खुद वैक्सीन बना रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो बना रहे हैं, तो हमारे पास तो ना तो वैक्सीन बनाई जा रही है ना हम मंगवा रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए था ना, जो बाहर से लोग आ रहे थे एटलीस्ट उनको चेक कर लेते, उनका टेस्ट कर लेते, उन्हें क्वारंटाइन कर लेते, फिर पाकिस्तान में आने देते।
कहते हैं वैक्सीन आ रही है, आएगी क्या? अब जब आधे लोग और खत्म अब हो ये जाएंगे। सूरत हाल है कि अब ये एक खेप तो बहुत बड़ी वैक्सीन की पहुंच चुकी है, दूसरी भी आ रही है, और दूसरा ये बिल्कुल कल आपने शायद इनका हुआ था अपना जो एनसीओसी के हेड है असद उमर साहब, वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल हम देखते हैं इस बात को भी कि जो हमारी प्राइवेट ये फर्म्स है, मेडिकल फर्म्स है, उनको हम बिल्कुल वो अलाउ करें कि वो भी अगर ये मेडिसिन बनाना चाहते हैं। तो ये देखें सारी चीजें देखें, ये एक जो नई चीज होती है उसमें यह नहीं कि किसी की कोई बदनीयती है या कुछ है, ये सीखते हैं, आप देखते हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेस्ट सूटेबल है उसके मुताबिक हमने उसके बिहेव करना है। आप ये तो माने कि पाकिस्तान के लोगों की नहीं, अब पेशेंट की तादाद भी तो चेक करें ना, पहले एक घर से एक बंदा या दो बंदे आते थे, अब पूरे के पूरे खानदान आ रहे हैं अस्पतालों में। ने बाकायदा तारीफ की कि ये जो है पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह डील किया। पहली लहर आप कह रही कि इन्होंने कुछ किया नहीं, जो पहली लहर आई थी और दूसरी उसमें बहुत अच्छी तरह से डील किया, उन्होंने बाकायदा नाम लेके पाकिस्तान का। शमशा साहबा, ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है, हम इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं करते। मेरी बात सुने, इसको हम इख्तलाफी नहीं बनाना चाहते। अगर आप कोरोना को कंट्रोल करें, अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, लोगों के लिए सहूलत पैदा करें और वैक्सीन मंगवाएं, वैक्सीन पाकिस्तान में बनाएं, जो भी करना है आपको करके दिखाएं। हम तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ चीज़ नजर आए। इसी हवाले से जो मशवरा दिया है, एक उसमें जो डिले हुआ उसकी वजह से, लेकिन अभी तो आप देखें और डिले नहीं होनी चाहिए ना मैडम, मैं यही कह रहा हूँ, डिले नहीं होनी चाहिए। डिले हो रही है हर काम में आपकी। ये वो टेक्निकल ऐसा मसला था कल, पूरा असद हम तो हर चीज का आगे जवाब देते हैं। चलिए शमशा साहब, इस पे आपका पॉइंट आ गया, अगले सवाल की जानिब जाने दें। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं होता, या तो लॉकडाउन होता है या नहीं होता है, इसलिए कोरोना से रोकथाम के लिए इंटरसिटी लॉकडाउन का होना बहुत जरूरी है। तो क्या आप क्या देखती हैं कि अब ये हमने तो ऑलरेडी कर दिया ना लॉकडाउन, आप देखते और ये कब ये उनके कहने के बाद हुआ? इसके लिए क्यों उनका कहना वज़ीर आला सिंध ने कहा तब हुआ, या पहले आपने सोच रखा था? वो तो वैसे ही वो तो अपने आप को वैसे ही बहुत बड़ा प्रोफेसर समझता है कि जुबानी बातें ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बिल्कुल हमने तो कर लिया। वो तो अभी वो कह रहे हैं ना कि इंटर प्रोविंशियल और इंटरसिटी हम बंद कर रहे हैं। हमने तो ऑलरेडी इंटरसिटी सर का यहाँ पे आप देखें कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने इसको बंद किया है। तो ये चीजें जो है देखिए, ये सिर्फ ये उसके लिए बोतानबाजी के लिए कि जिसने ये जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हम ये कर रहे हैं, वफाकी ने नहीं किया, हमने तो ऑलरेडी बंद किया पंजाब ने। तो पूरी शादियों को हर किस्म का वो सिंध भी कर रही है। उसमें आप अपनी तरफ से कोई और ऐसे डाल के जुमले तो अपने आप करते तो हैं, लेकिन करते उस वक्त है जब पानी सर से गुजर जाता है। आखिरी बात, जब पानी सर से गुजर जाता है फिर आप करते हैं। गवर्नेंस होती है पीपीपी की और पीएमएल नवाज की, तो मैं कहती हूँ पंजाब और सिंध तो आसमान को टच कर चले जाते जाते शमशा साहिबा आखिरी बात, बिल्कुल टच कर रहा होता है। शमशा साहिबा आखिरी बात, नीचे गए प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया, तो जाते जाते मैं आखिरी जो है वो खुद अपना काम करेंगे और इदारों पे मुल्क चलेगा, शख्सियत पे मुल्क नहीं चलेगा। शमशा साहिबा आखिरी बात कि वफाकी वजीर जो थे तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को घर में बुलाकर, टीम को बुलवाकर घर पे वैक्सीन लगवाई, जबकि एक तो ये गलत था कि अगर आम इंसान की बात की जाए तो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उसे जाना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने घर पे लगवाई तो उसमें एज लिमिट कोई भी नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो 50 या 60 साल की एज का होगा। तो यंग लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जहां पाकिस्तान में जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, 50-60 के साल के लोगों के भी प्रॉपर वैक्सीन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ घर पे बुला कर लगवाई जाती है प्रोटोकॉल के साथ। तो ये मेरिट है, ये मेरिट है आपका। इसी पॉइंट पे कल ये डिस्कशन हुई है और असद उमर साहब ने कहा कि अगर तो इसमें कोताही है सेंटर की, तो जो सेंटर के लोग हैं एनसीओसी के, उनसे पूछा जाएगा। अगर पंजाब में हुआ है तो उनसे पूछा जाएगा। और ये जरूर पूछे इस तरह मेरिट की धज्जियां ना उड़ाए मैडम। चलिए शमशा साहिबा, थैंक, आपका पॉइंट आ गया। ताकतवर बंदा है वो तो जो भी काम चाहे अपनी मर्जी से कर ले, यहाँ तक कि जब नैब में भी जाए तो पत्थर साथ लेके जाए और नैब को पत्थर मारे। तो ये तो हमारा ये मेरिट नहीं होना चाहिए लोगों को। इसी तरह से देखिए थोड़ी बहुत कहीं हो जाती है, हुई तो फिर हाईलाइट होगी है ना। मैं तो मीडिया को भी, लेकिन शमशा साहिबा उनका बयानिया तो नहीं था ना कि मेरिट पे हर काम किया जाएगा। इस चीज को हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, क्योंकि रियासत मदीना की बात तो ये बड़ी अच्छी बात मैडम आपने की है कि आपने कंडेम किया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कंडेम करते हैं, इसमें क्या बात है। देखिए कोई भी जो है ये तो ये जो एक ये हेल्थ का, आप क्या देखती हैं इसमें भी प्रायोरिटी अपने उस पे लेना, अपने इस वाक़े के बाद अगली कोई ऐसी मिसाल नजर आएगी कि नहीं आएगी? ये बहुत ज्यादती है, बिल्कुल हम तो ये समझते हैं इस बात को।
चले शम्सा साहिबा, थैंक यू। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद you, इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू। इसके साथ ही बात बनाने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।